خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے خود اعتمادی، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے 4 باب میں ایک معیاری ایماندار اور معیاری کلیسیا کو 5 ایسی سماجی برائیوں سے آگاہ کیا ہے اور انتباہ کیا ہے کہ اگر ایماندار اور کلیسیائیں ان 5 سماجی برائیوں سے بچی رہیں تو وہ خدا کی پسندیدہ کلیسیائیں بن سکتی ہیں اور خدا کے پسندیدہ ایماندار بن سکتے ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ان 5 سماجی برائیوں میں مقدس یعقوب نے 4 باب میں لڑائی جھگڑوں کو مضمون بنایا ہے، اور دنیا دوستی کو مضمون بنایا ہے، ناپاکی کو مضمون بنایا ہے، بدگوئی کو مضمون بنایا ہے، اور اب 13ویں اور 14ویں آیت میں خود اعتمادی کو مضمون بنایا ہے۔ ناظرین، یہ جو 5 سماجی برائیاں ہیں، ان برائیوں نے کلیسیاؤں کو تباہ کر رکھا ہے، اور پہلی صدی سے لے کر آج 21ویں صدی تک کلیسیاؤں میں یہ جو سماجی برائیاں ہیں جن کی نشاندہی مقدس یعقوب نے کی ہے، مقدس یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام سماجی برائیوں سے بچے رہیں تو تمام مسیحی اور مسیحی کلیسیائیں ایک ایماندار اور معیار اختیار کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سماجی برائیوں سے لپٹے رہیں تو پھر کلیسیائی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے ذہن میں ایمانداروں کا اور کلیسیاؤں کا جو معیار ہے وہ وہی ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے کمنڈ کیا ہے اور جسے خداوند یسوع مسیح نے ریکمنڈ کیا ہے۔ یعنی جو خداوند یسوع مسیح کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس کی کلیسیاؤں کو ایسے تیار کریں جن میں کوئی داغ، دھبا یا جری نہ ہو، جس کا نام مکاشوہ کی کتاب میں ایک جلالی کلیسیا کا دیا گیا ہے۔ جلالی کلیسیا کو تیار کرنے کے لیے ان 5 سماجی برائیوں سے کنارہ کرنا اور اجتناب کرنا ہر مسیحی ایماندار اور کلیسیاؤں کی روحانی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، 13ویں آیت میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس ایک آیت میں یعنی 13ویں آیت میں 5 چیزوں کو دیکھا گیا ہے۔ پہلی بات کہ تم جو کہتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی صدی کے جو مسیحی تھے وہ یہودی بیک گراؤنڈ کے تھے، یہودی پس منظر کے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کاروبار کرنے کا بہت ہی گہرا تجربہ اور بزنس کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ یہ پیسہ کمانے میں بہت
अच्छे थे और प्लानिंग करने में भी बहुत अच्छे थे। सो यहूदी बैकग्राउंड के जो मसीही थे वो कारोबारी मसीही थे, जो आए हुए थे, जो अच्छे पस मंजर से आए हुए थे। सो यहां उनको मुखातब किया गया है, तुम जो कहते हो। और इन कारोबारी मसीहियों को आज भी बहुत सारे मसीही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मसीही कारोबारी दुनिया में लगे हुए हैं। और आज मुकद्दस याकूब ने उन मसीहियों को मुखातब किया है जो मसीही हैं और मसीही ईमान में कारोबार करते हैं। तो हमें बतौर मसीही कारोबारी शख्स हमें क्या करना है? सो यहाँ 5 चीज़ें बताई गई हैं जो उस वक्त के मसीही ईमानदार करते थे और यकीनन आज के मसीही भी ऐसे ही करते हैं। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली बात कि ज़ाती मंसूबाबंदी। ज़ाती मंसूबाबंदी से मुराद कि इंसान अपने जहन में कारोबारी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है और उसके लिए मंसूबाबंदी करता है। तुम जो कहते हो, और यहाँ से मुराद ये है कि तुम जो कहते हो हम आज या कल फलां शहर जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे। यानी ये जो प्लानिंग है किसी भी कारोबारी मसीही के लिए ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि किसी ने बुर्ज बनाना हो और उसका तखमीना ना लगाए। ये ज़हनी काम करना बहुत ज़रूरी है और ये यहूदी मसीही जो थे वो करते थे। सो ज़ाती मंसूबाबंदी करना ज़रूरी है। फिर है ज़ाती नक्शाबंदी। यानी नक्शाबंदी से मुराद कि हम यहाँ यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ यहाँ सफ़र करेंगे। ये भी कारोबारी सलाहियतों में और कारोबार करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ाती मंसूबाबंदी भी करें और वो नक्शाबंदी भी करें। यानी अपना जो ट्रैवल प्लान है, जो मैप है, वो भी सेट करें कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर तीसरी बात ज़ाती तकवीम बंदी। तकवीम कहते हैं नाज़रीन कैलेंडर को, यानी बताना कि जनवरी में मेरा ये बिज़नेस होगा, मार्च में मेरा ये बिज़नेस होगा, जुलाई अगस्त में ये होगा। यानी पूरे साल का जो प्लान है, जो तकवीम है, जो कैलेंडर है, उसको भी प्लान करना कि इस साल मेरा ये बिज़नेस है। ये तीसरी बात है जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है। चौथी बात कारोबारी मंसूबाबंदी। कारोबारी मंसूबाबंदी से मुराद यह है कि मैंने कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना नफ़ा मुझे वहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि हम वहाँ एक बरस रहेंगे और सौदागरी करेंगे, नफ़ा उठाएंगे। और यहाँ पर इक्तिसादी मंसूबाबंदी भी है। इक्तिसादी मंसूबाबंदी से मुराद कि मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा और मुझे उसका प्रॉफिट जो है, नफ़ा जो है, वो कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। सो 5 चीज़ें हैं उन कारोबारी मसीहियों के लिए जो दुनिया में कारोबार करना चाहते हैं। वो 5 तरह की प्लानिंग करते हैं और करते थे। पहली बात ज़ाती मंसूबाबंदी, फिर ज़ाती नक्शाबंदी, फिर ज़ाती तकवीम बंदी, फिर कारोबारी मंसूबाबंदी और फिर इक्तिसादी मंसूबाबंदी। ये ज़रूरी है उन तमाम मसीहियों के लिए जो कारोबार कर रहे हैं। सो नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी मसीही कारोबारी शख्स को करनी चाहिए। मुकद्दस याकूब और खुदावंद यीशु मसीह इस बात के खिलाफ नहीं है कि हम कारोबार ना करें। मुकद्दस याकूब ने अपने बड़े भाई खुदावंद यीशु मसीह जो उसका मेयार है, उसको सामने रखते हुए कारोबारी दुनिया का मेयार बना दिया है कि ये 5 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है? अगर कारोबार करना बुरी बात नहीं है तो यहाँ गलती क्या है? गलती क्या है? गलती यह है कि तुम जो कहते हो, यानी ये सारी जो मंसूबाबंदी है जो बताई गई है, ज़ाती मंसूबाबंदी, ज़ाती नक्शाबंदी, ज़ाती कैलेंडरिंग, तकवीम बंदी, कारोबारी मंसूबाबंदी और इक्तिसादी मंसूबाबंदी, इसमें खुदा नहीं है। कारोबारी दुनिया में जो मसीही करते हैं इसमें खुदा नहीं है। मुकद्दस याकूब ये कहते हैं, तुम जो कहते हो कि मैं ये करूँगा,
शायद तुम ये समझते हो कि मैं बड़ा क्लेवर हूं, मैं ये सारे काम कर लूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, मैं ये काम कर लूंगा, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं ये ट्रैवल कर लूंगा, मेरे पास बड़ी अच्छी कैलेंडरिंग है यानी नक्शाबंदी है, मैं सारे शहरों से वाकिफ हूं, मैं ये कर लूंगा। मुकद्दस याकूब ने यह कहा है कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने खुदा को बीच में नहीं डाला, बल्कि अपने आप पर भरोसा किया है, खुद एतमादी पर भरोसा किया है। इसलिए आपके कारोबार में बरकत नहीं होगी, क्योंकि मेरे कारोबार में मैं हूं, लेकिन मेरा खुदा नहीं है जो सब कुछ देता है। नाज़रीन, कारोबारी हजरात जो हैं ये रुपए पैसे पर मान करते हैं, दौलत पर भरोसा करते हैं, अपनी अच्छी सेहत पर भरोसा करते हैं, अपने तलकात पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते, 14वीं आयत में देखें, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। यहां पर खुदा आया है। 13वीं आयत में जो कारोबारी लोग हैं वहां खुदा नहीं है। 14वीं आयत में मुकद्दस याकूब ने बताया है कि तुम जानते ही नहीं कि क्या है। अगर आप इमसाल की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत को देखें, यहां लिखा है कि कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। और फिर मुकद्दस लूका की इंजील के 12वें बाब की 16वीं से 21वें आयत में नाज़रीन खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की है। एक तमसील बयान की है कि वो कहता है कि मैं कोठियां बनाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं खजाने भर लूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर आज ही रात तेरी जान ले ली जाए तो तेरी मनसूबाबंदी क्या करेगी। सो नाज़रीन, कारोबारी मसीही हजरात और बहन और भाई जो कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं, कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, मसीहियों को बिजनेस में आना चाहिए। लेकिन अगर मसीही अपने आप पर भरोसा करते हैं, खुद एतमाद हैं, तो फिर बुरी बात है। 14वीं आयत में लिखा है तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। नाज़रीन, ये दुनिया फानी है। 14वीं आयत में लिखा हुआ है जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बखरात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। नाज़रीन, इंसानी जिंदगी जो है इसे बखरात के साथ तशबीह दी गई है याकूब 4:14 में। फिर इसे हवा के साथ तशबीह दिया गया है अय्यूब 7:7 में। बादल के साथ तशबीह दी गई है 7:7 में। इसके बाद जो जिंदगी की बेसबाती का जिक्र किया है वो ज़बूर 39 यानी 39वें ज़बूर की 5 और 6 आयत में जिंदगी की बेसबाती का जिक्र किया गया है। और 90वें ज़बूर में तो मसीहियों को बराह रास्त कह दिया गया है कि मुझे अपने दिन गिनना सिखा। नाज़रीन, मुकद्दस याकूब ने 13वीं आयत में बिजनेस जो करते हैं उनको चेक किया है, उनको बताया है कि आपका बिजनेस अच्छी चीज़ है, उसमें खुदा को डालें, फिर आपका बिजनेस खूब तरक्की करेगा और खुदावंद के नाम की गवाही होगी। और 14वीं आयत में उसने इंतबाह किया है कि अगर हम खुदा को नहीं डालेंगे तो हमारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा था तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, यूहन्ना की इंजील के 15 बाब की 5वें आयत में। सो नाज़रीन, तमाम मसीही कारोबार करें, खुदावंद आपके कारोबार को बरकत दे, लेकिन अपने कारोबार को खुद एतमादी का शिकार ना होने दें। खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में और अपनी प्लानिंग में, अपने कारोबार में दावत दें। मुकद्दस याकूब इस बात की तस्दीक करते हैं, गारंटी करते हैं कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। नाज़रीन, मसीहियों को कारोबार करने से मना नहीं किया गया, लेकिन कारोबारी हजरात को ये बताया गया है कि हम खुद एतमादी का शिकार ना हों, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह को दावत दें अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में, ताकि हम हमारा कारोबार और हम खुदा में यीशु मसीह के लिए गवाही बन सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदाबंद तेरे बंदा याकूब के वसीले से तू ज़िंदगी के तमाम पहलुओं
پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور آج تو نے کاروباری مسیحیوں سے خطاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ کاروبار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن خود اعتمادی میں کاروبار کرنا بے ثباتی ہے۔ خداوند تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے اور ہمارے کاروبار کو ہمیشہ ہماری ترقی اور مسیحی قوم کے لیے فائدہ اور گواہی کا سبب بنے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔